భారత అంతరిక్ష పరిశోధనా సంస్థ ఇస్రో మరో చారిత్రక ప్రయోగానికి రెడీ అయింది. తన 100వ ఉపగ్రహాన్ని కాసేపట్లో నింగిలోకి పంపనుంది. దీని ద్వారా మొత్తం 31 శాటిలైట్స్ ని స్పేస్ లోకి పంపుతోంది ఇస్రో. ఇప్పుడు ఆ లైవ్ చూద్దాం. इत्यादि अनेक ऐसे कारक होते हैं जिनके पूर्वानुमान के बिना ऐसे किसी भी अभियान की परिकल्पना पूरी कल्पना ही रह जाती. केवल 50 सेकंड की दूरी. -50 seconds. Sequences around. -45 seconds. -40 seconds. PS2 VHPP open. -35 seconds. -30 seconds. Real-time programs activated. -25 seconds. PS2 VSPP open. -20 seconds. बेहद नजदीक. -15 seconds. RCT pyro. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, +1, +2, +3, +4, +5 seconds. सामान प्रक्षेपण. PSLV लगातार हमसे दूर जाता हुआ प्रकाशित करता हुआ विस्तीर्ण अनंत आकाश की नीरवता से चीरता हुआ लक्ष्य की ओर सतत अग्रसर भारत का ये यान. घोषणा सारे विश्व के नाम भारत के निशान को संदेश सुनाना चाहता हूँ. सफलता के आसमान सीमित है और वसुदेव कुटुंबकम हमारे पूर्वजों का ये मूल मंत्र हमारे जीवन का. शायद इसीलिए PSLV यान प्रक्षेपण है तो मानव निर्मित किन्हीं सीमाओं को न मानता है न जानता है. वो इन सब से परे सिर्फ समझता है तो अपने निर्धारित मापदंड स्ट्रैप-ऑन्स अलग हो चुके हैं सफलतापूर्वक. इस समय एल्टीट्यूड करीब 40 किलोमीटर एंड जो ग्राउंड लिट पीएसआम थे वो सेपरेट, जो एयरलिट स्ट्रैप-ऑन सेपरेटेड वो भी अलग हो चुके हैं. 92 सेकंड्स का समय बीत गया है. स्ट्रैप-ऑन्स जो हवा में प्रज्वलित हुए थे वो भी अलग हो चुके हैं. इसके बाद कुछ ही क्षणों में फर्स्ट स्टेज या प्रथम चरण जो है वो अलग हो जाएगा. फर्स्ट स्टेज सेपरेटेड. जी हाँ, फर्स्ट स्टेज भी सेपरेट हो चुका और द्वितीय चरण जो सेकंड स्टेज है वो भी इग्नाइट हो चुका है 109.2 सेकंड्स के बाद. इस समय 86 किलोमीटर का रेंज और ऊंचाई लगभग. सेकंड स्टेज परफॉर्मेंस नॉर्मल. अभी तक का परफॉर्मेंस जो निष्पादन है वो पूरी तरह से सामान्य. ऊंचाई करीब 99 किलोमीटर 100 किलोमीटर पहुंचती हुई 140 सेकंड का समय बीत चुका हुआ. द्वितीय चरण का निष्पादन पूरी तरह से सामान्य. आप देख पा रहे हैं अपने स्क्रीन पर 109.2 सेकंड्स पे जो द्वितीय चरण जलत हुआ और ये बहुत ही महत्वपूर्ण था. हीट शील्ड का पेलोड फेयरिंग का यान से सफलतापूर्वक अलग होना. आपको याद दिला दें कि यही वो घटना थी जिसने पिछले अभियान को, पिछले मिशन को सफल नहीं होने दिया था, लेकिन ये अलग हो गई. और इस समय हम प्रतीक्षा कर रहे हैं सेकंड स्टेज के सेपरेशन की. द सेकंड स्टेज परफॉर्मेंस नॉर्मल is performing normal at approximately 170 seconds. Payload fairing was separated from the vehicle. The internal view of the mission control system, Mr. Mission Control Center, Range Operation Director giving the second detail. Stage performance normal. The performance is normal. Almost 215 seconds time is lapsed with the relative velocity of around 3 km per second. Range is 288 km and altitude is 191 km.
while azimuth as 153.8. This is the parameter which is obtained the internal view. सारे वरिष्ठ वैज्ञानिक, Plus 4 minutes. विदेशी ग्राहक, foreign Second stage customers, performance normal. they are observing the flight. Very happy moments because the performance is very satisfactory. Maybe shortly we can hear the announcement of the PS2 separation. Second stage engine shut off. Third stage ignited. जी हाँ, दूसरा चरण अलग हो गया और थर्ड स्टेज भी इग्नाइटेड हो गया. You can see the range plot in the screen after some Third time stage performance normal. that the vehicle is going eastward nominally. We require very high orbit inclination of approximately 96 degree for Cartosat. So the vehicle will be maneuvering to get this desired inclination. This is what you are observing. In fact, various co-passengers too prefer this inclination, so there is no big issue in injecting these many satellites into the same orbit. During the coasting phase, basically vehicle will be simply climbing the altitude but losing the velocity, means kinetic energy and potential energy is being shared. Very close match between pre-flight and observed Third flight stage data, performance as you can normal. observe here. Range Operation Director. All eyes on third stage separation. It's bit away. तृतीय चरण प्रमोचन के 264 सेकंड के बाद लगभग प्रज्वलित होता है, जो परंतु तृतीय चरण के पृथक्करण के समय यान 335 किलोमीटर की लगभग ऊंचाई पहुंच जाता है और इस पृथक्करण के समय वेग का मान 7.54 किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाता है. इस चरण का प्रज्वलन काल लगभग 320-324 सेकंड का होता है. हम काफी नजदीक थर्ड स्टेज के Plus 6 minutes. सेपरेशन के. अभी तक निष्पादन पूरी तरह से Third stage सामान्य. performance normal. वो यान को करीब करीब इस समय हम 340 किलोमीटर Third ऊंचाई stage पहुंच action चुके हैं. complete. Vehicle in coasting phase. वरिष्ठ वैज्ञानिक राकेश जी, अंतरिक्ष के डायरेक्टर, पूर्व केंद्र निदेशक शार के, वीएसएससी के, एसयू के, आप देख पा रहे होंगे इन्हें अपने स्क्रीन पर. रेंज ऑपरेशन डायरेक्टर अगले क्षण की घोषणा करने को तत्पर. Vehicle combined coasting normal. कोस्टिंग पूरी तरह से सामान्य. तृतीय चरण के ज्वलन के पश्चात और अंतिम चतुर्थ चरण के प्रज्वलन के पूर्व निःशक्ति समय या कोस्टिंग पीरियड जिसे कहा जाता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है. उड़ान अनुक्रम का निर्धारण प्राथमिक रूप से अभियान आवश्यकताओं पर निर्भर करता है ताकि लक्ष्य की स्थितियों को इष्टतम रूप से प्राप्त किया जा सके. उड़ान के इस निःशक्ति समय के दौरान रॉकेट मोटरों को बंद कर दिया जाता है ताकि निःशक्ति समय के अंतिम क्षणों में चतुर्थ चरण को कुछ सेकंड के बाद प्रज्वलित किया जा सके. ये अंतिम Vehicle चरण coasting normal. लगभग 500 to 6 सेकंड तक का होता है. अभी तक का निष्पादन पूरी तरह से सामान्य. आप अपने स्क्रीन पे जो ग्राफ देख पा रहे हैं, अनुमानित और अवलोकित पथ एक दूसरे को बिल्कुल फॉलो करते हुए. वी आर वेरी क्लोज मैच ऑफ observed data with the estimation, and we are very close to the most important event awaited is the fourth stage ignition. Before that, the third stage gets separated. Is very important mission for us. We will be Third stage separated. yeah. Third stage got separated at 494.8 seconds. As expected, performance is perfectly normal. 505. Fourth stage ignited. And fourth stage got ignited. This is the stage which is carrying the 31 satellites along with that to put into the orbit at desired altitude, desired location, desired orbit. Now,
We are almost Fourth stage performance normal. We are almost completed 530 seconds. Performance is perfectly normal. The relative velocity what we are getting as on now is 5.96 kilometer per second with a range of 1796 kilometer. Altitude is 470 kilometer close to. Performance पूरी तरह से normal. चौथे चरण के प्रज्वलन के बाद जो काल है उसे तब टर्मिनेट किया जाता है जब जितनी भी अभीष्ट आकलन है, जितने भी अभीष्ट जानकारियां हैं, वो आंकड़े हैं, उन्हें प्राप्त किया जा सके. Fourth stage performance normal. सारा निष्पादन चौथे चरण का पूरी तरह से जैसा अपेक्षित था वैसा रहा. पूरे तीनों जो चरण थे उन्होंने जैसी हिम्मत देनी थी चौथे चरण को वो दी और चौथा चरण अपने गंतव्य तक, ताकि उपग्रहों को यान से उनकी कक्षा में छोड़ा जा सके, अलग किया जा सके. इस समय हम 10 minutes. लगभग Fourth stage performance normal. 10 मिनट का समय व्यतीत कर चुके हैं और करीब करीब चौथे चरण के अंत में पहुंचते हुए केंद्रीय निदेशक एलपीएससी के जो आईपीआरसी के जो विभिन्न गतिविधियों को ध्यानपूर्वक देख रहे हैं. The data which you are getting is about 2,345 kilometers range with altitude of 500 kilometer, and inclination is yet to be obtained after fourth stage injects into the orbit. The ground trace on the right side by range versus altitude on the left side graph. Dr. Annadurai, Dr. Tapan Mishra, Dr. Somnath, Fourth stage विभिन्न performance केंद्रों के normal. निदेशक जो भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रमों को एक दिशा देते हैं. सामान्य निष्पादन प्रारंभिक कक्षा में अंतःक्षेपण या इंजेक्शन के पश्चात उपग्रह में लगी दोनों सौर पट्टिकाएं पूर्व नियोजित व समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार प्रस्तुत हो जाएंगी, डिप्लॉय हो जाएंगी. कार्टोसैट 2 उपग्रह को कर्नाटक के बेंगलोर में स्थित स्ट्रैक भूकेंद्र अपने नियंत्रण में ले लेगा. यह तब होगा जब कार्टोसैट 2 श्रृंखला के उपग्रह को 505 किलोमीटर की वृत्तीय सूर्य तुल्यकालिक कक्षा में प्रक्षेपित किया जाए. Fourth stage performance normal. जो भूमध्य रेखीय समतल के सापेक्ष में 97.47 डिग्री से झुकी हुई है. परफॉर्मेंस पूरी तरह से नॉर्मल. आज जो देरी हुई उसका एक विश्लेषण किया जाता है जिसे हम अंतरिक्ष वस्तु निकटता या प्रॉक्सिमिटी एनालिसिस भी कहते हैं, ताकि इस बात की पुष्टि किया जा सके कि प्रमोचन को होने या न होने में कोई त्रुटि तो नहीं आएगी. इस विश्लेषण का आधार है संघट्ट या टकराहट का खतरा. कक्षा में पहुंचने के बाद किसी भी पूर्व विद्यमान वस्तु से या डेब्रिस से यान के अंतिम चरण या उपग्रह से टकराने की संभावना का अनुमान लगाना इस विश्लेषण का मुख्य उद्देश्य होता है. और इसी के कारण हमने 1 मिनट की देरी की आज के यान में. ऐसा पहले भी हो चुका है, आपको याद होगा PSLV C-19 RISAT-1 में, PSLV C-20 सरल में जब 1 या 2 मिनट की देरी की गई थी. The various stages get separated. The performance of fourth stage is normal. The spent stages of a multi-stage launch vehicle are separated from the main vehicle once their useful purpose is served. The separation should be smooth and collision-free under all possible circumstances. Separation events are mission critical and utmost important. PSLV employs various separation systems. The first stage separates from the vehicle using flexible linear shaped charge, FLSC and retro rockets, then imparts the separation velocity. The various parameters being monitored at different screens in the mission.